ان کو मालूम हो जाए کہ یہ کیسے لوگ ہیں. کلیسیا ہی یہ سب کچھ بتائے گی، یہ میں جا کر نہیں بتاؤں گا. خدا خود آ کر نہیں کچھ بتانا چاہتا، وہ کلیسیا کے ذریعہ سے کام کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. یہ بہت بڑی بات ہے، وہ لوگوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا میں دنیا کا نور ہوں. کیا کہتا ہے؟ میں دنیا کا نور ہوں. اور پھر کیا کہتا ہے؟ تم دنیا کے. اب تم دنیا، بھائی دنیا کا نور تو میں ہوں، لیکن میں تمہیں اپنا یہ نور دیے جاتا ہوں. اب اس نور کو لے کر، جو میں اکیلا تھا، لیکن اب اس نور کو لے کر جگہ بجگہ جاؤ اور تمام دنیا کے اندھیروں کو مٹا دو. جاؤ ساری دنیا کو بتا دو میں دنیا کا نور ہوں. کہتا ہے اب تم دنیا کے نور ہو. اپنی جگہ پر ہمیں وہ خدمت، وہ بھید، وہ مکاشفہ اور وہ خوبصورت بیان ہمیں دیے جاتا ہے. ہم اس کی امین ہیں. کلیسیا اس کی امین ہے. کلیسیا ہوتی کون ہے ویسے؟ کلیسیا ہے کون؟ ابھی بات ہو رہی تھی، ہم اس کی دلہن ہیں. ہم کیا ہیں؟ اس کی. آپ کو بتاؤں، یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ بہت انوکھا اور عجیب رشتہ ہے. یہ میاں بیوی کا رشتہ ایک عجیب طرح کا رشتہ ہے. اس میں دلہا اور دلہن ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات کہتے ہیں، اپنا آپ بیان کرتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. کسی اور کو دلہا اپنے دل کی بات نہیں بتاتا. سمسون کو دیکھ لیں. سمسون بڑا جبار اور ماہر لڑاکا، طاقت سے بھرپور. اسے پوچھا اس کی محبوبہ نے، وہ بھید کیا ہے، وہ راز کیا ہے؟ کسی کو نہیں بتا رہا. اسے جکڑا جا رہا ہے تو وہ تمام کے تمام بند توڑ دیتا ہے. اسے اگر شہر کا پھاٹک اکھاڑنا پڑے تو شہر کا پھاٹک اکھاڑ کر پہاڑ تک لے کر جا سکتا ہے. اسے اس کے ہاتھ میں اگر گدھے کی ہڈی آ جائے تو اس ہڈی سے 1000 لوگوں کو وہ مار سکتا ہے. طاقت اتنی ہے، لیکن بھید اس کے اندر ہے. وہ بھید کسی کو نہیں بتائے گا. بھید کس کو بتائے گا؟ جس سے وہ محبت کرتا ہے. دلہن کو بتائے گا اور کسی کو نہیں بتائے گا. اور ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھید کہتا ہے جو شروع سے، جو نبیوں کو نہیں پتا، وہ اس کی دلہن نہیں تھے. اور بھائی موسیٰ کو وہ مقام اور وہ مرتبہ حاصل نہیں تھا جو آپ کو ہے. ایلیا کو وہ مرتبہ حاصل نہیں تھا جو آپ کو ہے. اس نے کہا جتنے بھی عورتوں میں سے پیدا ہوئے ان میں سے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں. متی کی انجیل 11 باب. لیکن میں زبانی حوالہ بول رہا ہوں بیٹا، بعد میں دیکھ لیجئے گا. لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا ہے وہ یوحنا سے بھی بڑا ہے. یعنی اس شخص سے جس سے سارے نبی چھوٹے ہیں، جس سے سارے اولیاء چھوٹے ہیں، جس سے سارے کے سارے رسول جس سے کمتر ہیں. اگر کوئی آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا ہوگا تو وہ اس یوحنا سے بھی بڑا ہوگا. ہاللیلویا. یہ ہے کلیسیا کا مقام، یہ ہے خدا کی بادشاہی کو قبول کرنے والوں کا مقام اور ان کی جگہ. تو ہم عام لوگ نہیں ہیں. کلیسیا کوئی عام نہیں ہے، یہ خدا کی چنی ہوئی جماعت ہے، یہ اس کی دلہن ہے. اور آپ دیکھیں شادی کے اندر کتنے باپ بھی ہوتا ہے، ماں بھی ہوتی ہے، چاچا، ماما، تایا، پھوپھی، سب بڑے موجود ہیں. لیکن اہمیت کس؟ دوست بھی بڑے بڑے موجود ہیں. دل کرے وہ تیرے کونسلر نو بھی بلایا ہوئے، ایم این اے بھی آیا ہوئے کوئی. اس دن اہمیت کس کی ہے؟ دولہے کی. اور اس کے بعد بھی ان کی زندگی میں وہ ان کی آپس میں ہی انڈرسٹینڈنگ ہے.
याद रखें, हमेशा दुल्हा अपनी दुल्हन को मोहब्बत करता है और उससे अपने राज़ो न्याज़ की बातें बताता है। मैं इस मज़मून को थोड़ा सा आगे लेकर जाना चाहता हूं कि वो इस अज़ली इरादा को किस तरह से अपनी दुल्हन में पूरा करना चाहता है। हकीकत में दुल्हन जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है और समझना पड़ेगा दुल्हन को कि वो दुल्हन कहलाने के लायक है या नहीं, या उसका रवैया क्या होना चाहिए, उसका तरीका क्या होना चाहिए, उसकी समझ का मयार क्या होना चाहिए। जब ये आपको समझ आ जाएगी तो फिर वो आपके अंदर वो भेद रखना शुरू कर देगा। दानियल को उसने भेद नहीं, दानियल ने कहा वो बातें कब होंगी, उसने कहा तेरे मुतल्लिका बातें नहीं आखिरी दौर में होंगी, आखिरी दौर में मैं ये भेद बताऊंगा, तब ये बातें लोगों को समझ आएंगी। आज के दिन वो अपने भेद आप पर जाहिर करना चाहता है। अगर किसी भी सरदार काहिन को, किसी भी मूसा को, किसी भी हारून को, किसी भी बड़े नबी को वो भेद नहीं इल्म जो आज के दिन और इस जमाना में खुदा आपको बताना चाहता है। आइए मेरे साथ एक और हवाला देखें। इफ्सियों ही का खाता और उसका 5वां बाब है। मैं मियां बीवी की बात कर रहा था और दुल्हन और दुल्हा की बात कर रहा था, मसीह और कलीसिया की बात कर रहा था, तो यह हवाला पढ़ना बड़ा जरूरी होगा, आपके लिए बाइस से बरकत होगा। 22वीं आयत, ऐ बीवियों अपनी शौहरों के ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की। कैसे ताबे रहना है? किसने? बीवी ने। बीवी ने अपने शौहर के कैसे ताबे रहना है? जैसे, मैंने आप सुन रही है ना, खुदावंद के कैसे ताबे रहा जाता है? कैसे कोई खुदा के ताबे रह सकता है? हर बात उसकी सुनना। कभी हमने खुदा से बहस की कि जी तुसी फलाना तरीका इंज कर लेंदे तो फिर कैसा सी, ये यार ये निजात का तरीका बपतिस्मा नहीं होना चाहिए था, बपतिस्मा यार ठंड बड़ी लगती है, और कोई तरीका होना चाहिए था, गोता जे आ जाता, कोई और तरीका होना चाहिए था निजात का। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं ना हो सकता, नहीं हो सकता। आप बहस नहीं करेंगे खुदा से। क्यों? इसलिए कि वो आपका सर है, समझ का काम उसका है, गौर करने का काम उस। अगर ग्रंथियों का खात उसका पहला ग्रंथी उसका 11वां बाब देख लें तो वहां पर भी लिखा है कि मैं हवाला पढ़ देता हूं, हवाला मैं चाहता हूं कि एज इट इज पढ़ लूं। यहां पर ही रहिएगा, आप यहां पर रहिए। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं, तुम हर बात में मुझे याद रखते हो। जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें पहुंचा दी तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं। सुनिए क्या आगाह करना चाहता है। हर मर्द का सर मसीह और हर औरत का सर उसका मर्द, और मसीह का सर खुदा है। ये वो भेद है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं। तो औरत का काम नहीं है सोचने का, औरत का काम नहीं है बहस करने का, औरत का काम है उसकी बात पर अमल करना। ऐसे मोहब्बत रखो और अपने शौहरों के ऐसे ताबे रहो जैसे कि खुदावंद की। और आगे चले, क्योंकि शौहर बीवी का सर है। शौहर बीवी का क्या है? ये देखो ना, ये सर है, ये वाला हिस्सा सर, वो नहीं SIR सर वाला नहीं, ये उर्दू वाला सर, हेड। तो ये सर है। अब कभी यहां से जब तक ऑर्डर ना आए, क्या मेरा हाथ ऐसे मूव कर सकता है? ये मेरी टांग ऐसे करेगी? नहीं करेगी। हाथ ऐसे हो रहा है, ये क्यों? यहां से ऑर्डर मिल रहा है। हुक्म कहां से मिल रहा है? सर से। और जब तक सर नहीं कहेगा उस वक्त तक बदन कुछ नहीं करेगा। लेकिन कुछ बदन ऐसे कर भी लेते हैं, वो पागल होंगे ने बेचारे, उन्होंने समझ नहीं आती, लत्तां बावां उन्होंने, वो जानबूझ के नहीं कर रहे होते। उनका जिस्मानी जो तरीकाकार है, जो बॉडी का सिस्टम है, जो जिस्मानी ऑर्डर्स हैं, वो खराब हो चुके होते हैं। और जिस्मानी ऑर्डर्स खराब होने की वजह से वो करना कुछ चाहता है, हो कुछ रहा होता है। तो कई खानदानों में ऐसे भी होता है कि वहां पर उनका ऑर्डर खराब है, उनका तरीका खराब है, घर में औरत की हुक्मरानी है, गलत है। मैं ये कहा करता हूं, कभी कभी औरतें कहती हैं लो जी मैं स्टाफ नर्स है गई, वो तो रंग का काम करता है, तो समझते मैनू बहुत ही है ना। तो मैं बात बताऊंगी ना, हुक्म तो मेरा चलना चाहिए, ज्यादा तो मुझे समझ है, पढ़ी लिखी तो बहुत ही मैं। ओ भाई, बात ये नहीं है कि आप पढ़ी लिखी हैं या नहीं, बात यह है कि सर कौन है। खुदा ने किसको सर ठहराया है? जिसको सर ठहराया है उसकी सुनना पड़ेगी। अगर कोई इस ऑर्डर को खराब करता है, वो खुदा के आईन, खुदा के कानून, खुदा के तरीका के मुखालफत में खड़ा हो जाता है। तो आगे चले,
ऐ बीवियों अपने शौहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शौहर बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में, कितनी बातों में, कि कुछ अपनी भी विच विच कर लीजिए मन मर्जी, नहीं, हर बात में अपने शौहरों के ताबे हों। ये भेद है। आगे चलें, आगे बता ही देता हूं ये भेद कैसे है। 31वां, इसी सबब से आदमी बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है। क्या कहता है? ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं। ये भेद की बात जो मैं बता रहा हूं, ये शौहर और बीवी की जो मैं तल्लुक बता रहा हूं, बीवी को कैसे ताबे होना चाहिए, शौहर को कैसे मोहब्बत रखनी चाहिए, कैसे ख्याल रखना चाहिए, ये बड़ा भेद है। लेकिन ये बात जो मैं कर रहा हूं, ये किसकी है? दर हकीकत ये मसीह और उसकी कलीसिया की बात है। तो तमाम मर्द और तमाम औरतें, हम सब के सब उसकी कलीसिया यानी उसकी दुल्हन हैं। हम क्या अपनी मर्जी बता सकते हैं कि यीशु इस तरह ना कर लिए? नहीं हो सकता ना। दुल्हन कभी नहीं बताएगी। जो दुल्हन इस तरह से करना चाहती है वो अपने सर के ताबे नहीं है, अपने शौहर के ताबे नहीं है, और कोई भी कलीसिया यीशु को नहीं सिखा सकती, कोई भी आलम यीशु को नहीं सिखा सकता। लेकिन माजरत के साथ मैंने ऐसे आलमों को पढ़ा है, ऐसे आलमों के बारे में जानता हूं जो इस तरह की रवायात और इस तरह के तरीके बताते हैं जो इस कलाम में नहीं लिखे हुए। आप जाकर देखिए, आप पास्टर मुगल साहब से पूछिए, पास्टर जावेद जॉर्ज से पूछिए, और दूसरे खादमों से पूछिए, आप मुझसे पूछ लीजिए। मैं आपको बता देता हूं, हमारे क्रिश्चियनिटी में इस वक्त इतनी ज्यादा रवायात आ चुकी हैं, ऐसे तरीके आ चुके हैं जो शौहर का फरमान नहीं है, जो दुल्हा का फरमान नहीं है। लेकिन दुल्हन अपनी समझ से, अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, अपनी अकल से, अपनी हिकमत से, अपनी दानिश से वो बनाए फिर रही है। पता नहीं दुल्हा का फायदा करना चाह रही है या अपना फायदा करना चाह रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। पता नहीं दुल्हा को समझ नहीं थी, पता नहीं खुदा को इतनी समझ नहीं थी कि वो बात, किसी से मेरी बात हुई, ये बात जरूर बताऊंगा। मैंने कहा भाईजान आप ये जो बातें, मैंने कहा वो भाई कोई ऐसा था जो रवायतों पर बहुत यकीन रखता था। मैंने कहा भाईजान ये जो आप बातें करते हैं ये बाइबल में तो नहीं लिखी। भाई जो बाइबल में लिखी है उनकी बात करो मेरे साथ, जो कलाम में लिखा है उसकी बात करो, और उसके बाहर जो कुछ है वो सब झूठ है। मैं उसे नहीं मानना चाहता। उसने पता क्या कहा? उसने कहा कभी आपने बाइबल में पढ़ा है कि लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह की और भी बहुत सारी ऐसी बातें और ऐसे वाकयात थे जिनका जिक्र ही नहीं किया गया, और अगर उनका जिक्र किया जाता तो दुनिया में वो सबसे बड़ी किताब बन जाती। मैंने कहा जी ये तो मैंने पढ़ा है। तो वो पता क्या कहने लगा? उसने कहा ये वो बातें हैं तो मैंने उसे कहा वो अच्छा खासा सीरियस आदमी है, वो ऐसा नहीं कोई बच्चा नहीं है। अच्छा वो मेरे मैं बताना नहीं चाहता, रिकॉर्डिंग हो रही है, एक अजीज़ हैं और उनके खासे उम्र रसीदा एक हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी ये बात है। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा अजीज़ किस इस बात की क्या श्योरिटी है कि जो बात आप कर रहे हैं यही वो बात है जो लिखी नहीं गई? और भाई जो नहीं लिखी उसकी तरफ क्यों भाग रहे हो? क्यों सर खपाते हो? क्यों उसके लिए परेशान होते हो? क्यों लोगों में जा जाकर पंफलेट तकसीम करते हो? क्यों गलत तरह की मनादी लिख लिख कर लोगों को समझाते हो, बताते हो? जो लिखा हुआ है उस पर क्यों नहीं अमल कर लेते? जो यकीनी तौर पर दुल्हा के मुंह से निकली हुई बात है उस पर क्यों नहीं अमल करते? दूसरी बातों की तरफ क्यों ध्यान करते हो? क्या यह दुरुस्त नहीं था? बोलिए, क्या खुदा के कलाम को मानना और खुदा के कलाम पर ठहरना दुरुस्त है, या रवायतों पर जो इंसानों ने बनाई हैं खुदा के कलाम को? तो हम यही बात करना चाहते हैं। तो मसीह जो है वो है कलीसिया का सर, और इसका मतलब समझाएगा कौन? मसीह। बताएगा कौन? मसीह। होना क्या चाहिए? जो मसीह ने कहा। होना क्या चाहिए? जो कलाम में लिखा है। और जो कुछ कलाम से बाहर है वो सब कुछ नहीं
होना चाहिए, वो सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो अपने खादमों से पूछिए, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। बपतिस्मा की बात करें तो 400 बपतिस्मे आपके सामने निकल आएंगे। एक कहेगा कि बच्चों को बपतिस्मा दें, एक कहेगा जी नहीं बच्चों को नहीं दें, बड़ों को दें, एक कहेगा जी बपतिस्मा सिर्फ और सिर्फ गोते से होना चाहिए, दूसरा कहे जी गोते से नहीं होना चाहिए, वैसे ही छिड़काव से भी हो सकता है। एक कहता है छिड़काव की भी जरूरत नहीं, उंजी टोप और लाके उंगली जी लाके थे इस तरह करके क्रॉस बना दो, अंजी बपतिस्मा हो जाता है। और एक कहता है जी बपतिस्मा बाप बेटे रुल कुदस के नाम से होना चाहिए, दूसरा कहता नहीं जी बपतिस्मा तो यीशु मसीह के नाम से होना चाहिए। कितने ज्यादा, कोई कहता बपतिस्मा होना ही नहीं चाहिए, झंडे थले लंघ जाओ जी, छड़ो पर बपतिस्मा की लोड़ ही कोई नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मेरे अजीज सुनिए बहनों, आप मैं हम कलीसिया हैं, और वो भेद कलीसिया को बताता है। दुल्हन जो दुल्हन दुल्हा की मर्जी के मुताबिक होती है, उसके सामने दुल्हा अपना दिल खोलता है, लेकिन ऐसी दुल्हन के सामने कभी दिल नहीं खोलेगा जो उसके ताबे नहीं है। ऐसे नहीं है क्या? कोई भी दुल्हा अपना दिल उस दुल्हन के सामने नहीं खोलेगा, ऐसी बीवी के सामने नहीं खोलेगा, या तब तक नहीं खोलेगा जब तक वो उसके ताबे ना हो जाए। अगर वो ताबे हो जाए फिर वो अपना दिल खोलता है, फिर वो अपनी मोहब्बत जिताता है, फिर अपने गहरे गहरे भेद बताता है, और उस तख्लीक करने वाले खुदा के अंदर गहरे भेद मौजूद हैं। और वो गहरा भेद जो हमें बताना चाहता है कि हम उस भेद को लेकर, कलीसिया उस भेद को लेकर तमाम दुनिया में अबलीस की ताकत को, झूठे शागिर्दों को, झूठी तालीम वालों को, झूठे रसूलों को, और सबको यह बता दे कि दुरुस्त बात क्या है। क्या उसने कहा? उन हुकूमत वालों को, हुकूमत वाले इख्तियार वालों के बारे में पढ़ना है तो इफ्सियों का खत 6 बाब में पढ़ लीजिएगा कि ये कौन है हुकूमत वाले, ये हुकूमत वाले, ये इख्तियार वाले। ये गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, हुकूमत वाले यानी सदर सरदारी की बात नहीं हो रही है। ये हुकूमत और इख्तियार रूहानी तौर पर जो इख्तियार रखते हैं, यानी इब्लीस और उसकी फौजें और उसके खादम, और ऐसे खादम जो इब्लीस के खादम होते हुए खुदा के खादमों के हम शक्ल बने फिर रहे हैं। झूठे रसूल, झूठे नबी, रवायतों पर चलने वाले खादम, पादरी, बिशप, ये उनकी बात उनको बताओ। ये कलीसिया के पास भेद है, कलीसिया ये बात बताएगी, और किसी के